We want to be do the limiting reagent. Can we start with the limiting reagent? Sir, I think you did that. We have done the limiting reagent. Yeah. I think, Okay. yeah. So did you not have any doubt in this all? No. So whether we need a practice for that all, or is it enough we can move to the next chapter? We can move on. Okay. Which chapter you want to start? So 1 second. Yeah. You can tell me the chapter which you feel are more difficult for you. Yes. We can do the difficult chapters first, okay? Yes. Your final exam is in Feb now? You have said it with the syllabus till No, Feb? sir. December. Okay, December. So beta, please try that do not skip your classes. Yeah. Yeah. Okay. No, there is no problem. I can make you comfortable in your chemistry. Yeah. Did you get comfortable in first chapter na beta? Yeah. Give me your all problems of chemistry. Yes, sir. I will handle it beta. Yes. So this once. Which So, chapter beta? so the covalent model. Okay, chemical bonding. Okay, we are starting. Just give me a minute. So can you see? Yeah, sure. Yeah. Just give me a minute. Bruno. Which one, beta? It's covalent bonds, na? Camera. Yeah, covalent bond shapes of the molecules on the basis of Westport theory. Yeah. Okay, stop it. We can start it. Okay, tell me, beta. The first point, what is chemical? What do you think? What is a chemical bond? It's a bond between two atoms. Two or more. Simply, the chemical bond is defined as force of attraction between atoms, okay, which holds the atoms together within a molecule. Okay. Okay. So it is nothing. It is just like we can have two atoms. The attraction between these two atoms is defined as chemical. Got it, beta? Yes. So chemical bond is nothing else. It is a force of attraction between the atoms and which hold the atoms together within a molecule. Got it? Yes. Now, question arises, why atoms form chemical bond? To achieve full octet. No. The basic thing is to attain the stability. Okay. Okay. Now, stability meaning is different for a different persons. Like for Shreya, what is the mean of stability? If she got selected in final exam, she gets stable. Clear? Yeah. For Rahul sir, the stability means to get a long time to be get sleep, because I cannot be able to be sleep a lot. Clear? Yeah. So stability is a different mean for different person. If your father is fond of a good food, so their stability means that I can get the best dishes anywhere else. And for mama, the stability is
that her daughter gets successful in her life. Clear? Yes. So sir. stability are the different meanings. To explain this, we have to be study three theories: Lewis concept or Lewis octet theory, VBT, and MOT. Clear, mera bacha? Note down Yes. this. We have to study these things. So what is VBT? We can explain it better one by one. Okay, just one. Okay. Yeah. Can I start with Lewis concept? Yes. So first comes Lewis. अगर आपको आराम से बताऊं, लुइस ने पूरी पीरियोडिक टेबल को बड़े ध्यान से देखा एंड ही फाउंड 6 गैसेस: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन. इनकी खास बात क्या होती है बेटा? Sir, this is These are inert gases inert. or noble gases. Clear? Yeah. But they are not be able to form a compound. Most of them are do not forming any compound. तो लुइस ने सोचा ये कंपाउंड क्यों नहीं बना रहे? अब ये कंपाउंड नहीं बना रहे तो दीज आर स्टेबल. Yeah. तो उन्होंने कहा ये स्टेबल क्यों है? आज श्रेया क्यों पढ़ना चाहती है? श्रेया ने अपनी कजन को या अपने किसी रिलेटिव के बच्चे को या अपने आस पड़ोस के बच्चे को देखा कि वो नीट करके डॉक्टर बन गया एंड ही गॉट अ सक्सेस इन हिज और हर लाइफ. तो श्रेया को लगा शायद मैं भी ऐसे कर लूंगी. क्लियर है मेरा बच्चा? हम किसी को अपना आइडियल बनाते हैं. सो लुइस ने कहा ये स्टेबल क्यों है? बिकॉज दे हैव अ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. अंडरस्टैंड मेरा बच्चा? Yes. मान लीजिए श्रेया की कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई नाम बताओ बेटे. Sarah. जारा. लेट इसका जारा का बर्थडे था. मम्मा को जारा पसंद नहीं है, पर श्रेया को जारा ने बुलाया अपने घर पे और उसे बाहर का बहुत सारा खाना खिला दिया. अब श्रेया मम्मा को बताना नहीं चाहती कि मेरे को जारा ने खाना खिलाया. मम्मा ने घर पे एक अच्छी सी डिश बनाई हुई है जो श्रेया की फेवरेट है. क्लियर? Yes. और श्रेया के पेट में बिल्कुल जगह नहीं है. तो श्रेया का रिस्पॉन्स उस डिश के लिए कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा या इग्नोर करेगी श्रेया? Ignore. इग्नोर. यहां भी यही चीज है. उन्होंने कहा कि इनके बाहर वाला शेल एनएस और एनपी से बना होता है. क्लियर सबका? क्लियर? और एनएस और एनपी फुल हो, इनका सबका फुल है. नियॉन में 2s2 2p6, आर्गन में 3s2 3p6, क्रिप्टन में 4s2 4p6. तो दे हैव अ फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट. तो जब इनका ऑक्टेट फुल है तो क्या इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा होगी? नहीं. तो दे आर स्टेबल. और जो बाकी एटम्स हैं वो भी ये सब चाहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू लुइस, द 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसे ऑक्टेट कहते हैं, यहां छोटा सा एक्सेप्शन, डबलेट इन केस ऑफ हीलियम, is a fully filled stable configuration. Okay? Yes. And each atom wants to attain this stability. This meeting is being recorded. Understand मेरा बच्चा? Yes. For this, either it share electrons to form covalent bond or give and take electrons.
टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। नोट कर लीजिए। क्या ये बात समझ आ रही है मेरी बेटी को? हाँ सर। मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। शायद जहां समझ ना आए, जहां स्पीड ज्यादा लगे, प्लीज बोल देना मेरे को। यस सर। सर क्या आप मुझे SPDF भी बता सकते हो, वो वाला कौन सा? लो मेरे बेटे, मैं एक बार फिर वापस चलूं एटम के ऊपर। नहीं वो मालूम है, पर जस्ट जो कुछ होता है ना, लाइक 2n² फॉर्मूला। ओके ओके, मैं बता देता हूं बेटे। सुनिए, इन एनी एटम 4 चीजें होती है, शेल या ऑर्बिट। हर शेल में सब शेल होता है, हर सब शेल में ऑर्बिटल होता है, एंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। जैसे आप कहां से बिलोंग करते हो? बेंगलोर से। हाँ। तो बेंगलोर में जो सब डिवीजन एरियाज है वो सेक्टर्स में डिवाइड है, जैसे चंडीगढ़ में, या और कुछ है, कॉलोनीज है? नहीं नाम है जगह। ओके, अलग अलग एरियाज है। सो हाँ। बेंगलोर इज योर शेल, क्लियर? हाँ। और बेंगलोर में जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, दैट इज कॉल्ड सब शेल्स, क्लियर? In हाँ। society, different houses are orbitals, and in house where Shreya lives is a electron. Clear? यस। मैंने श्रेया को कोई लेटर पोस्ट करना है, लेट इज नॉट द टाइम ऑफ मेल और फोन, एंड आई वांट टू बी पोस्ट अ लेटर टू श्रेया। तो मेरे को उस लेटर के एड्रेस बार में क्या लिखना पड़ेगा? पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, दैट इज श्रेया, हर हाउस नंबर, हर कॉलोनी और एरिया, एंड फाइनली the city name. Is it clear or not? यस सर। So to express the address of any person, we require the 4 terms in the address bar. Similarly, to complete the address of electron, we have to be study 4 things. So these 4 things are known as quantum numbers. That is principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Clear? सर मैं पहली बार सुन रही हूँ ये, जो रेड में लिखा क्वांटम है। नंबर्स। अच्छा, हाँ। क्वांटम नंबर्स है बेटे। प्रिंसिपल कोई नहीं, आराम से समझ जाओगे, 2 मिनट में समझ जाओगे बेटे, कोई बहुत बड़ा नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, लॉन्ग और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन सबको, एंड स्पिन क्वांटम। क्लियर मेरी बेटी? यस सर। अब सबसे पहले थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये PLE होता है, नॉर्मल प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग नहीं होती। ये हमें किसके बारे में बता रहा है? शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। क्लियर? यस सर। It tells us about shell, orbit और एनर्जी लेवल। अब आप यस। देखिए, एक एटम के बाहर सिर्फ एक शेल है, एक एटम के बाहर 2 शेल हैं, और एक एटम के बाहर 3 शेल है। तो किसका साइज बड़ा होगा? 3। तो ये हमें किसके बारे में बताता है? साइज और रेडियस। एग्री कर रहा है मेरा बेटा? यस। इट टेल्स अस अबाउट साइज और रेडियस। अब एक यस। सिटी में बहुत सारी कॉलोनीज होंगी, तो इसमें एक शेल में मैक्सिमम सब शेल कितने होंगे? मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे? और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। 3 ही चीजें आ सकती हैं। यस। एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4, 1 से शुरू के इनफाइनाइट तक चलती है। क्लियर?
Yes, sir. एंड दे आर आल्सो नोन एज के शेल। फर्स्ट को के शेल कहते हैं, एल शेल, एम शेल, ये नोट कर लीजिए। Okay. एक शेल में मैक्सिमम सब शेल, ये 3 चीजें लिखनी है। एन होता है, अभी समझाऊंगा इसको। ऑर्बिटल्स एन स्क्वायर होते हैं मैक्सिमम, यानी इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये 3 फिगर नोट कर लो, एन, एन स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर। अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलूं आगे। Yes. अब सेकंड आते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल, इसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है और n-1 तक चलती है। एग्री कर रही है बेटी? Yes. मींस ये बात इंपॉर्टेंटली लिख लो, एल शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन एन। एल हमेशा एन से छोटा होगा, क्योंकि n-1 तक जाएगा ना। हाँ. So means it tells us about subshell. Clear? Yes, sir. याद रखना, अगर L की वैल्यू 0 है, then it is known as S subshell. Okay? Yeah. If the value of L is 1, it is known as P subshell. 2 means D subshell. 3 means F subshell. Agree कर रहे हो? Yes. S की शेप स्फेरिकल होती है। क्या होती है? स्फेरिकल। बॉल होती है ना, जैसे बॉल जैसी होती है। हाँ. P डम्बल। क्लियर? हाँ. It is sphere. It is dumbbell. It is double dumbbell. एफ में 3 डंबल होते हैं तीनों डायरेक्शन में, और वो बनाने मुश्किल हो जाते हैं, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स लिख के नोट कर। Okay. मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट साइज, पर ये किसके बारे में बता रहा है? हमें शेप। एग्री कर रहे हो? Yes. क्या ये कंफर्टेबल है कि नहीं है? हाँ. अंडरस्टैंड मेरा बच्चा? हाँ. अब सुनिए, इफ देयर इज अ वैल्यू ऑफ n इज 1, मींस आई एम आस्किंग अबाउट की शेल। तो इसमें सबशेल कितने होने चाहिए? 1। हाँ. 1 ही होना चाहिए। और वो कौन सा होगा? S. 0. So it is called 1s. Understand? Not s, it is called 1s. Understand? अब बनने लग गए धीरे धीरे। If Yes. n is 2, मतलब L सबशेल। L शेल। तो 2 का मतलब कितने सबशेल होंगे? One. 1s. 1s. नो 2. नो, ना ना, एक तो होगा L इक्वल्स टू 0 और एक होगा L इक्वल्स टू 1। ये समझ रहे हो? n-1 तक। हाँ. तो इसे 0 मीन्स S कहेंगे, किसका S है? 2 का। 1 मीन्स P कहेंगे, 2P। नहीं समझ आएगा? नहीं. क्योंकि बेटे L की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 0. 0 to n-1। तो 0 से शुरू करोगे और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी? 2-1 यानी 1। तो दो ही वैल्यू आएंगे, 0 एंड 1। 0 हाँ. मीन्स S, 1 मीन्स P, पर किसका है? सेकंड का ना। लिखने का तरीका होता है NL। पहला वर्ड N आता है और दूसरा वर्ड L आता Okay. है। नोट कर लीजिए इसको।
यस सर। अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं कि n इक्वल्स टू 3 है, m शेल है, m शेल लिख दे या 3 लिख दे एक ही बात है, तो कितने सब शेल होंगे मेरी बेटी? हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर? 3 वेरी गुड मेरा पुत्र। विच वन आर दीज? SPD। Yeah. So you can say L should be possible as 0, 1, and 2. 0 means it is 3s, 3p. Getting this or not? हाँ आराम से करो, चिंता ना करो। समझ आ रहा है मेरे बेटे को? हाँ बस मेरे बेटे ने प्रॉब्लम बतानी है, वही प्रॉब्लम उसी टाइम सॉल्व हो जाएगी। 4 मीन्स विच शेल? इट इज एन शेल। तो इसमें सब शेल कितने होंगे मेरी बेटी? 4 वेरी गुड। कौन कौन से होंगे? SPDF। उनको क्या कहेंगे? They are S called 4s, not s. oh 4s. sorry 4S 4P 4D 4। क्या ये बात समझ आई मेरी बेटी को? यस तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि किसी भी शेल में मैक्सिमम सब शेल क्या होंगे? n के बराबर होंगे। मींस फर्स्ट शेल में एक ही था 1s, सेकंड में 2 थे 2s एंड 2p, थर्ड में 3 थे 3s 3p एंड 3d, और फोर्थ में 4 थे 4s 4p 4d एंड 4s। आर यू कंफर्टेबल और नॉट मेरा पुत्र? यस ये नोट कर लीजिए। यस तो बेसिकली अभी तक आपने क्या सीखा? फर्स्ट क्वांटम नंबर का नाम क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n से डिनोट हो रहा है। n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन चल रही है। k शेल, l शेल, m शेल, n शेल चल रहा है। समझ आ रहा है मेरी बेटी को? यस मैक्सिमम सब शेल कितने होंगे? n या मेरा बच्चा? N 0 to N minus। अंडरस्टैंडिंग? मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे? N minus N square। ये हमें किस किस के बारे में बता रहा है? साइज, रेडियस, और अगर हमें साइज पता है तो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक मेरी बेटी को बताओ, कोई डाउट है? नो सर। मेरी बेटी पूरी तरह से कंफर्टेबल होगी इसके अंदर। यस दूसरे नंबर पे कौन सा आया था? अजीम अजीम। इसकी वैल्यू कहां से चलती है? 0, यानी टोटल वैल्यू क्या होगी? n होगी। क्लियर? या s p d f, यानी ये हमें किसके शेप? एग्री कर रहे हो मेरे बच्चे? यस यहाँ एक लाइन लिख लो, मैक्सिमम। अब सब शेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स होंगे। एक कॉलोनी में तो घर ही होंगे ना, शहर तो नहीं होंगे। हाँ तो ऑर्बिटल्स 2l+1, और इलेक्ट्रॉन हमेशा डबल होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल यानी एक घर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पीछे ऑर्बिटल्स कितने बनाए थे? n स्क्वायर,
तो इलेक्ट्रॉन्स कितने कर दिए 2n²। अब ऑर्बिटल्स बनाए 2l+1, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए डबल ऑफ 2l+1, दैट इज 2l+1। या नोट कर लीजिए बेटा। डन। अंडरस्टैंड हो रहा है मेरी बेटी को? यस। मुश्किल तो लग रहा है, यही प्रॉब्लम कर रहे थे आपको? हाँ। यानी फर्स्ट शेल में, शेल अगर आपका फर्स्ट है तो उसमें सब शेल क्या होगा 1s, 2 है वन तो क्या होगा 2s2p, 3 है तो क्या होगा 2 3s 3p 3d और फोर्थ में 4s 4d 4p 4d 4f। आराम से यहां तक चेक करो पहले, क्या ये कंफर्टेबल हो गया मेरा पुत्र या नहीं। यस सर। थर्ड नंबर पे आती है, चलूं आगे। यस सर। ऑन थर्ड नंबर वी गॉट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताती है। तो पहला शेल था, दूसरा सब शेल, तीसरा ऑर्बिटल, समझ आ रहा है? यस। इसकी वैल्यू -l से शुरू होकर 0 तक जाएगी और 0 से +l तक, मीन्स टोटल वैल्यू क्या हो जाएंगी 2l+1, यही आनी चाहिए थी। या मीन्स अगर l इक्वल्स टू 0 है यानी s सब शेल है, तो उसमें ऑर्बिटल्स क्या होगा सिर्फ 0 ही होगा। या क्लियर? बोलो मेरा या पुत्र। इफ देयर इज अ l इक्वल्स टू 1 यानी p सब शेल है, तो ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1। -l से शुरू होगा ना मेरा बच्चा। यस। तो किसी एक को px कहते हैं, किसी एक को py कहते हैं और किसी एक को pz कहते हैं। अब px क्या होता है? अगर, सर हाँ मेरा बेटा, सर क्या ये हमारे सिलेबस में है? हाँ बेटे ये तो सबके सिलेबस में, तो बेसिक बातें हैं, ये कहीं ना क्योंकि कहीं तो आपको तंग करेगी। हाँ हाँ, क्वांटम नंबर लाइक ये सब मैंने टेक्स्ट बुक में भी नहीं पढ़ा। यार ये तो छोटी क्लासेस से पढ़ा देते हैं हम, 9th क्लास से। ओके। ये फिर तंग हो गए ना, अगर आगे फिर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अभी इसकी शेप्स केमिकल बॉन्डिंग में हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। 5 मिनट का है, को बहुत ज्यादा नहीं है, ये ओके। नोट कर लीजिए। यस। तो ऑर्बिटल यानी किसके बारे में बता रहा है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वर्ड समझ रहे हो? शेप। दैट इज नो, वो तो शेप तो सेकंड सबशेल बता, ओरिएंटेशन मींस किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन। या यस सर डन। डन मेरा बच्चा। यहीं पे मैं आपको डी दे दूं, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या है 2। हाँ। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 वैल्यूज होगी। इनमें से 3 को कहते हैं डी एक्स वाई। क्लियर? यस। और 2 को कहते हैं, क्लियर, यस। डी एक्स वाई क्या है एक्स वाई के इन बिटवीन लोब। वाई जेड क्या है
वाई और जेड के इन बिटवीन लोब, और एक्स जेड क्या है, एक्स और जेड के इन बिटवीन लोब। एग्री कर रहे हो? यस डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या है, एक्स और वाई एक्सिस पे लोब। डी जेड स्क्र क्या होता है, जेड एक्सिस पे लोब और एक्स वाई में डोनट शेप। इसकी सिर्फ अकेले की अलग शेप होती यस है। कंफर्टेबल मेरा बच्चा? यस तो इसका मतलब क्या होगा, जो एस सबशेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। क्लियर? यस पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने कई जगह बनी देखी होंगी। क्लियर? यस तो हर एक लेवल पे दो ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं। क्लियर? यस एनी प्रॉब्लम मेरा बच्चा? नो कंफर्टेबल है मेरा पुत्र? यस और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल क्या होंगे, into 2 ओनली टू या टू। तो एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो। पी 2 में कितने आएंगे, 6। 6 डी में कितने, ये तो आप पढ़ते हो ना। 10 हाँ ये पड़ा है। हाँ तो बेटा ये क्लियर तभी होगा ना जब ये चीज क्लियर होगी। हाँ तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन कितने प्लस कर रहे हो, 4, क्योंकि ऑर्बिटल कितने प्लस हो रहे हैं, तो नोट कर दीजिए इसको। यस कंफर्टेबल मेरा बच्चा? यस अब सुनिए, यानी जो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन बना रहे हो, लास्ट आती है स्पिन क्वांटम नंबर। ये कहता है जो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन बना रहे हो, एक तो क्या होता है क्लॉकवाइज, और एक क्या होता है क्लियर। यस इसके लिए एस की वैल्यू प्लस हाफ लेनी है। एनी प्रॉब्लम? नो नोट कर लीजिए सारा। डन क्लियर? यस मीन्स मैं एक कॉमन शेल बनाता हूं, एन शेल। एन शेल का मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, 4। या क्लियर? तो एल की वैल्यू क्या होगी मेरी बेटी, 0 1 2 जीरो को क्या बोलेंगे, 3 एस कौन 1 सा एस है, 1 1 है? एस नो, अगर शेल फोर्थ है तो ये 4s हो जाएगा। 4 एस पी सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे, 4 पी 4 डी थर्ड को
मुश्किल। नहीं। अब एक शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे? टू। इसमें एक ही होगा। किसी को px कह दोगे, किसी को py कह दोगे और किसी को pz कह दो। मुश्किल। नो सर। ये 5 आ गए। और इसमें 7 आ जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब टोटल ऑर्बिटल गिनो कितने हैं? 1, 3, 5 और 7। टोटल कितने हो गए? 16। या। एंड फॉर n द ऑर्बिटल शुड बी n स्क्वायर। यही बात सही हो रही है? यस। And the number of subshell in any orbital is 2l plus 1. When you यस। put l equals to 0, so it becomes 1 here. If you put या। l equals to 1, then it will be 3 and same 5 and 7. Note down this. Comfortable मेरा बच्चा? यस सर। चिंता तो नहीं हो रही? नो सर। सारी कैलकुलेशन समझ आ रही है? यस। डन। डन मेरा बच्चा। डन। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो उसके लिए हम अफबाउस प्रिंसिपल। उसको पूरा करने की जरूरत नहीं, आप एक ऑर्डर याद कर लो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। क्लियर? यस। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। क्या आपको पीरियोडिक टेबल की इमेज याद है? थोड़ी बहुत। अभी लो। सर लेफ्ट साइड में एस, राइट साइड में पी, पैरों में। डी। क्लियर? यस। अब सुनिए, सबसे पहले किसको भरते हैं हम? 1s। हाँ। क्लियर? फिर किसको भरते हैं मेरी बेटी? 2s। टू। फिर किसको भरते हैं? 2p। फिर 3s, 3p, फिर मेरा बेटी या 4s, फिर शायद 4d 3d। और 3d। नहीं समझ आ रहा? सर उसे 3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि डी के केस में इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाते हैं, बाहर से अंदर वाले में। इसलिए वैलेंस शेल हमेशा किससे बना होता है? एस और पी से। डी नहीं आता वैलेंस में, बाहर एस और पी आता है। क्लियर? यस। याद रखना, बाहर वाले सेल में एस और पी के इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें डी के आते हैं और इनर पेनल्टीमेट में आता है। क्लियर? यस सर। फिर पर लाइक कुछ पहले फिर 3D में होता है ना? हाँ, फिर 5s। क्लियर? यस। फिर 6s। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा?
4 है। नहीं क्लियर हुआ? ये बना के रख लो। Yes, sir. Done. डन। Yeah. अब जैसे मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है, तो कैसे भरोगे? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? सबसे पहले कहाँ जाओगे मेरी बेटी? Sir, 1s 1s. और 1 कंफर्टेबल। Yes. हीलियम का भर रहे हैं तो क्या भरोगे? 1s. 2, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है ना। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. इसको भरो बेटे। 1s2. 1p. नो, 1s के 1p तो होता ही नहीं। Or 2s. Sorry, sir. 1p तो होता ही नहीं। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, दैट इज 1s। क्लियर? Yes, sir. इसका भरिए। 1s2. 2s2. और 2p. 2p हाउ मच? 5. Sorry, sir. P1. आराम से समझो, कोई डर नहीं है। समझ नहीं आया तो मेरे को बोलना है आपने, सर मेरे को नहीं समझ आया। Yes. अंडरस्टैंड हुआ? Yes, sir. 7 नाइट्रोजन। 1s2. 2s2. 2s2. और 2p3. वेरी गुड, क्योंकि पी की कैपेसिटी कितनी होती है? 6 maximum. या 9 फ्लोरीन। 1s2. 2s2. 2p5. सुपर मेरा बच्चा। श्रेया ने एक बात नोटिस की, कि वो जब आप repeat. 3 दिन बाद मेरे से आज बात कर रहे थे तो शुरू में फिर घबरा गए, और 15-20 मिनट बाद ही मेरा बेटा फिर फुल फ्लैश आ गया कॉन्फिडेंस में। आया ना कॉन्फिडेंस? हाँ सर. आपको आता है मेरा बच्चा, मैं कुछ भी नहीं करा रहा आपको, आप अपने दिमाग से कर रहे हो। डिड यू नो? और जो टॉपिक आपने आधे घंटे में समझा है, पता है एक एवरेज बच्चा कितना टाइम लगाता है इसको समझने में? He or she will be take 2 lectures to complete this, which you have completed just in 30 minutes. Configuration समझ आ गया आपको? And this is not a easy thing. तो कॉन्फिडेंस रख मेरा पुत्र। Would it clear? Yes sir. जहां टेंशन है केमिस्ट्री की, आप मेरे को दे दो, आपने नहीं लेनी। Would it clear? मैम के Yes. थ्रू मेरे से जब मर्जी बात करो कि मैम मेरी राहुल सर से क्लास बात करा दो 5 मिनट, सो आई विल बी टॉक विद यू। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट क्लियर? Yes sir. बोलो बेटा। 1s2. 2s2. 2p6. uh, 2p6. 3s1.
सुपर मेरा पुत्र। 15 phosphorus. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 3p3, सुपर मेरा बच्चा। 20 कैल्शियम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s 4s2. अब याद होने लगे ना, पीछे वाला तो दवा बोल रहे हो, बहुत स्पीड पे बोल रहे हो। या So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, then 3d, 3d5. Yes, 3d. why 3d5? Because the maximum capacity of S is 2 electron, P is 6 electron, and what is the maximum capacity of D? 10. Good. Zinc 30. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. अब बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है? Uh, 35 ब्रोमीन। सर प्रॉब्लम ये है कि एस लास्ट होना चाहिए ना, नहीं, कोई जरूरी नहीं, कहाँ एस लास्ट है? लाइक आप बोल रहे थे एस या पी लास्ट होगा ऑर्बिटल। हाँ हाँ, एस वैलेंस शेल तो एस का ही है यहाँ पे, ये देखो वैलेंस शेल तो 4th है। हाँ वैलेंस शेल तो 4th है बेटी। सबसे बाहर वाला शेल क्या है? एस या फोर। पी है, देख लीजिए किसी में चेक कर लीजिए मेरी बेटी। हाँ एस। ब्रोमीन 35। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4 4p 4p5. सुपर मेरा बच्चा, बताइए क्या समस्या आ रही है? इसी नो ऑर्डर में प्रॉब्लम। नोट करके रख लो, क्योंकि ये सीखने का एक सही तरीका बनाया हुआ है। हाँ डन सर। कंफर्टेबल? yes
अच्छा, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 60, उसका कन्फ्यूजन लिखिए। Okay. 1s2, 2s2, हम्म 3, no, sorry, 2p6, 3s2, हम्म 3p6, हम्म then 4s2, हम्म and 3d10, then 4p6, हम्म and then 5s2, हम्म then 4d10, हम्म 5s, no, 5p6, वेरी गुड। where 6s2, हम्म where 6d10, नो, no, sorry, f, okay, 4f, 4f18, क्यों? वाई 18? 10, 20, 30, 36, 38, 48, 654, 256, 60। oh, okay, 6, 4, yeah, एनी प्रॉब्लम मेरा बच्चा? no, आर यू कंफर्टेबल? yes, लेट इफ आई कैन गिव यू आर्बिटरी 112, देन अब देखो इससे मुश्किल तो नहीं आएगा ना? हाँ, अब ये मेरी बेटी कर देगी, बोलो। so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, यहाँ 5, 36 पूरे हो गए, यहाँ 36 पूरे हो गए, ठीक है। yes, sir. आगे 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f 8, 14, um, then 5D, 5d 5d10, then 6s2 s, no, 6p6, 6p6, then 7s2, then 5f14, यहाँ तक then, चेक करो कितने हो गए। 80, 88, 98, 102 हो गया। हाँ, फिर 6d10, अब आपको इसको याद करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना इतना लंबा? हाँ, इसको भी इजी कर दें। हाँ, तो आपने तीन कुछ नंबर याद रखने हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 याद कर सकते हो। दीज आर नोन एज मैजिक नंबर्स। ओके, हाँ, अब सुनिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। अगली इनर्ट गैस नियोन है, तो 2 + 8 हो जाएगा 10। फिर आर्गन है, 10 + 8 क्या हो जाएगा? 18। क्रिप्टन है 36, जेनोन है 54 और रेडॉन है 86। क्लियर? yes,
फर्स्ट में सिर्फ कौन आता है 1s, सेकंड में आता है 2s और 2p, थर्ड में आता है 3s 3p, फोर्थ में आता है 4s 3d 4p, 5 में आता है 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, और लास्ट में आएगा 7s। मुश्किल। नो। अब जैसे आपने किसका किया था, आपने 60 का किया था, आपको सर 60 का तो बहुत बड़ा था, मुश्किल था। 54 यहाँ पूरा हो रहा है, जिनोन लिख दिया, जिनोन मतलब 54 हो गया। फिर 6s2 56 हो गया, हाँ हो गया। हाँ हमने 112 किया था, रेडॉन लिख दिया, 86 हो गया, 88 102 क्लियर, 100 यस हो गया। यस यस। तो ये पहले से आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? आसान। अब चिंता खत्म हुई श्रेया, यस सर। करो इसको, ठीक है। यस। एनी अदर प्रॉब्लम मेरा बेटा? नो सर। क्लासेस का शेड्यूल ना पहले से मैम को कंफर्म कर देना, आज मेरे को बड़ी दिक्कत आई आपकी क्लास के चक्कर में, और मेरे को तो मैंने श्रेया की क्लास आज मिस नहीं करनी। ओके। तो मैं सो रहे थे ना उस टाइम क्लास में, तो आप प्लीज शेड्यूल ना एडवांस में कंफर्म कर दो, ताकि ना बड़ी बाकी क्लासेस ठीक मेरा बेटा। यस सर। ओके मेरा बच्चा, और कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम, यू कैन मैसेज टू मैम, तो मैम मेरे को उसी टाइम मैसेज कर देंगे कि श्रेया की ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दीजिए, यस ठीक है। ओके बेटा, सर। बाय। बोलो 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 मैं बोलो। आपको वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर कर दूं वो टेक्स्ट बुक के लिए? हाँ हाँ, वो सेंड कर दो, मैम के थ्रू सेंड कर दो, मैं उसको निकाल दूँ। और यस किस सर। वेबसाइट पे अवेलेबल है? सर शायद कोई ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मेरे को उसकी स्क्रीनशॉट भेज दोगे आपका? हाँ मैं सब शेयर ठीक है, कर दीजिए बेटा, मैं इवनिंग तक कर, दैट मेक कर। इजी फॉर। ओके मेरा बेटा, बाय। थैंक यू सर। बाय।